हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के 7 सितंबर के डेली करंट अफेयर एंड एडिटोरियल एनालिसिस बाय प्रो टैलेंट विद अ रीडिंग कंटेंट. My dear students, I'm sure that you are aware that this reading content are available to you on courses.protalentdigital.com. A very important, you can say, site we have developed. This is free content available. आप वहाँ से ले सकते हैं. ठीक है. The sincere and very serious candidates are joining our CLAT 2022 online courses. They are wonderful courses, and these courses are ensuring that you are going to get a proper treatment in your online mode as well. Okay, let's start with the agenda for the day. Today we are going to discuss about Taliban, which has claimed complete control on Panjshir area, and now they are saying the war is over and we are going to develop a peace and we are going to develop our own government. Okay, so they have finally published their details about who are going to be the leaders. Okay, so first and foremost, again say we have to talk about and understand the issue related to Panjshir. 5 शेरों की जगह विच इज़ अ वैली. ठीक है, आप देख सकते हैं आजू बाजू काफ़ी पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के बीच में कहीं कबीले में ये लोग रहते हैं. ठीक है, एंड दिस वैली हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर तालिबान बिकॉज तालिबान couldn't capture that area. Where is Panjshir located? This is the map of Afghanistan. This is the capital of Afghanistan, Kabul, जो 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने कैप्चर करके रखा था. उसके बिल्कुल बाजू में एक छोटा सा एरिया is such a huge, you can say, valley, you can say, which is known as Panjshir. Okay, ठीक है. One of the 34 provinces of Afghanistan. Afghanistan is divided into 34 provinces, and because of these provinces there are challenges which are coming. It is some around 150 kilometers away from Kabul. The total population of this province is roughly 1,73,000 people, and majorly they are Tajik ethnic group. Okay, and their dominant language is Dari. Remember, Panjshir is also famous for precious stones like emeralds. Okay, there are a lot of resistant movements are coming up. Afghanistan is overall known for, you can say agriculture development related to the weeds. Okay, और अफीम, चरस, गांजा, ओपियम. ओके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगता है. उसके अलावा you will find there emeralds, you will find them lithium, you will find there lot of other precious items. Okay, और वहीं पे लड़ाइयाँ होती रहती है. So Panjshir was not ready to accept, you can say, this entire region. Now why Panjshir remained out of the reach of Taliban? Panjshir is tucked within the mountainous regions known as Hindu Kush. ओके, जो आपके सामने ये फोटोग्राफ में दिख रहा है, इतने सारे माउंटेनियस रीजन के बीच में ये पड़ा हुआ है, एंड देयर बाय इट इज अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम. ठीक है, द ओनली एक्सेस पॉइंट is here. Okay, that is through a narrow passage created by Panjshir river. The roads are closed to the outsider. ठीक है, यहाँ बस एक ही रास्ता यहाँ जाने का, ये रिवर जा रही है बीच में से. ठीक है, बस यही रिवर है जहाँ से एंट्री ले सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है. ठीक है, Panjshir has been long known as an anti-Taliban bastion. It never fell to Taliban, even though you can say civil war. Even before that, it was even not conquered by Soviet. It was home to a province of Ahmad Shah Massoud, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोरिल्ला लीडर ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाते हैं ये. ठीक है, अहमद शाह मसूद is a most famed anti-Taliban fighter. He was born in 1953 in this valley itself. He led the strongest resistance against Taliban. In 1996, under his leadership, tribal group of Panjshir opposed
Taliban's brutal rule, they unified and they made first Northern Alliance. Masood and the other Northern alliances controlled almost the entire region of northwestern region, including Panjshir, which makes a border with China and Tajikistan. Masood was assassinated by Al Qaeda militants on 9 September 2001, 2 days before 9/11 attack. इनको मार डाला गया था and they become very powerful post against a 9/11 attack. Now Northern Alliance is bringing the new resistance. The key figures of the resistance are Amarullah Saleh, he was a vice president, he was deposed. ठीक है. Bismillah Mohammadi, he was ex-defense minister, and Ahmad Masood, he was the son of late Ahmad Shah Masood. These are the group of people who opposed. क्या करे फाइनली? ठीक है, इन लोगों को मतलब इन लोगों को हराकर तालिबान could capture the entire Panjshir. ठीक है. This was a national resistance front, had some around 10,000 members. These members were opposing some around 85 to 90,000 huge against the army of Taliban. This front includes the members of Afghan forces who left Taliban territory to join Northern Alliance. Kuch, you can say, the Afghan forces have joined with Taliban because they got a lot of money. ठीक है, और कुछ लोगों ने इनके साथ ज्वाइन किया. लोकल ट्राइबल लीडर्स हु आर अपोजिंग तालिबान. ठीक है, तो भैया अहमद मसूद, ठीक है, जिन्होंने इन सबको इकट्ठा करा एंड दे पोज्ड अ रेजिस्टेंस. ठीक है, बट ऑब्वियसली दिस रेजिस्टेंस you can say was short lived and finally you can say Taliban captured this Panjshir and they developed new government. Okay, so दोस्तों इसी की वेट हो रही थी कि अगर ये इनके कंट्रोल में आ जाए तो सब कुछ इनके कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा माना गया था. Now entire Afghanistan is in the control of Taliban and they are now forming government. They were waiting for this day and on 8th of September, ठीक है, they are going to announce the new government. Okay, सुप्रीम कोर्ट सेंटर के ऊपर बहुत खफा हुआ. सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग इन अ राइट मैनर. क्या चीजों में सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे गुस्सा आ रहा है? देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को ऑब्वियसली मतलब कहीं पे इंपॉर्टेंट पोजीशंस जस्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट पोजीशन अगर फुलफिल नहीं हुई देन सुप्रीम कोर्ट विल बी वेरी एंग्री. सुप्रीम कोर्ट को बहुत गुस्सा आएगा कि भाई जुडिशियल सिस्टम काम कैसे करेगी. सो सुप्रीम कोर्ट का मेजर फोकस रहता है जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर. ठीक है, पीपल लाइक यू एंड मी, ठीक है, सिटीजन्स शुड ऑल्सो गेट एंग्री अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, प्राइमरली बाय द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग हो रहा है जिस तरीके से हुआ अभी तक, ठीक है, उसमें आपको और मुझे बहुत गुस्सा होना चाहिए. 2 मिनट इसके ऊपर बात करते हैं. हालांकि ये न्यूज आइटम इसके साथ कनेक्टेड नहीं है बट इट ब्रिंग्स अस टू वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. पिछले 4 सेशंस कोरोना की वजह से, है ना, अच्छी तरीके से हो नहीं पाए. अब कोरोना का नाम दे दीजिए या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था नहीं, वो आप नाम दे दीजिए, जो भी आप नाम दीजिए, अच्छी तरीके से हुए नहीं. ठीक है, बड़े प्रॉब्लम हुए. ठीक है, पार्लियामेंट आपको पता होगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट. ठीक है, ओके, यही एक पार्लियामेंट बनाते हैं. ये 3 लोग पार्लियामेंट बनाते हैं. हम बात करें उनमें से लोकसभा और राज्यसभा का वहां पे पोजीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों लोकसभा, ठीक है, जो एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं और ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग कहीं ना कहीं यू कैन से देश के लिए अच्छा काम करते हैं क्योंकि इनका काम है कि भैया कैसे भी करके आपको देश चलाना है, मतलब लॉ बनाना है. ठीक है, इनका काम है लॉ बनाने का काम करना है. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज यू कैन से व्हेन द लॉ मेकर्स आर नॉट मीटिंग क्वाइट रेगुलरली एंड इफ दे आर मीटिंग they are not going for any kind of debate, any kind of discussions, there are problems. ठीक है दोस्तों, साल भर में in 1 year
ठीक है, there are 3 sessions. One is winter session, other is called budget session, and the next is called monsoon session. ठीक है, आपने देखा होगा मॉनसून सेशन अपने समय से पहले उसको बंद कर दिया गया. ठीक है, द प्रॉब्लम इज पार्लियामेंट सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है. ये सुनो, तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि निकाल दो इनको, पार्लियामेंट की जरूरत है क्या हमें? चौथे सेशन, स्ट्रेट 4 सेशंस के अंदर, ठीक है, पिछले 4 सेशन समय से पहले खत्म हो गए. विंटर सेशन तो कैंसिल ही कर दिया गया था. ये सुनो, मानसून सेशन भी समय से पहले खत्म हो गया. ठीक है, जिन जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ. कोविड-19 का रिस्पॉन्स और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये उनका महत्वपूर्ण काम था. किया क्या डिस्कशन? नहीं. चाइनीज इनकर्जन्स जो लद्दाख में हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन किया? नहीं. व्हाट इज इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, उसके बारे में क्या आगे करना चाहिए, व्हाट इज अवर फ्यूचर स्टैंड, आर वी डिस्कसिंग दैट? नो. जो भी एसेंशियल आइटम्स है उनकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ? नहीं. ठीक है, तो भैया ये तो बुरी बुरी बात हो गई. इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लेकर आए, दिस इज व्हाट वी एडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन्स वेस्ट मिंस्टर मॉडल. हम वहाँ से लेकर आए. ठीक है, वेस्ट मिंस्टर मॉडल क्या काम करता है? ठीक है, एक ट्रेडिशन के ऊपर काम करता है, जहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ के इलेक्टोरेट्स आर क्वाइट लेस. ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, देयर आर लेस देन लाख वोट्स. ठीक है, बस उतने ही वोटर है वहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में. भारत में वो तो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी काफ़ी ज़्यादा वोटर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ का जो मॉडल है वो पॉसिबली इज अ गुड मॉडल. भारत के अंदर हम लेकर आ गए पार्टी सिस्टम. ठीक है, जब हम पार्टी सिस्टम लेकर आ गए तो हमारे लिए तो काफ़ी दिक्कतें होने लगी. ये सुनो दोस्तों, अगर हम देखें तो इस बार, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के नज़रिए से देखें तो लोकसभा इज वर्कड जस्ट फॉर 19% ऑफ देयर शेड्यूल टाइम एंड राज्यसभा वर्कड फॉर ओनली 26%. ये सुनो, these are the kind of, you can say, numbers we have. Out of 18 bills which were passed in Lok Sabha, ये सुनो कितने बिल पास हुए? 18 बिल जो पास करे उनमें से एक ही बिल के ऊपर 15 मिनट से ज़्यादा डिस्कशन हुआ, उसके अलावा कोई डिस्कशन हुआ नहीं. ठीक है, isn't it bad? दोस्तों अटेंडेंस भी पुअर होती है. ये सुनो, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कोई डिस्कशन होता नहीं है, और बड़ी बड़ी परेशानियां कि अगर कोई बंदा अगर बीजेपी में होने के बावजूद अगर इसके ऊपर डिबेट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे व्हिप जारी कर दिया होता है कि भैया आपको पास व्हिप जारी कर दिया है. ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशियल प्रोसेस के अंदर क्या बड़ी परेशानी करी है, उन्होंने रूल्स लेकर आ गए थे दैट मेनी ट्राइब्यूनल्स हैव टू बी रिमूव्ड. चलिए बात बराबर है, ट्राइब्यूनल आपने रिमूव कर दिए, ट्राइब्यूनल और कौसी जुडिशियल बॉडी आपने उसको रिमूव कर दिया और बोला कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा हाई कोर्ट इसके बारे में काम करेगा. चलिए मान लेते हैं, पर जो ऑलरेडी कुछ ट्राइब्यूनल है उनकी वैकेंसीज का क्या? चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब ने बड़ा गुस्से में इनको बताया कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, इन डूइंग दिस. तो गलत बात है, तुम काम नहीं कर रहे हो, हमारी बातें सुन नहीं रहे हो, तो अब आपके पास 13 सितंबर तक का टाइम है, आपको ट्राइब्यूनल की वैकेंसीज फिल करनी है कि नहीं करनी है, उसके बारे में आपका अपना ओपिनियन बता दीजिए. द बेंच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड एल. नागेश्वर राव. उन्होंने बोला ट्राइब्यूनल्स अक्रॉस कंट्री वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स. क्यों? वैकेंसी फुलफिल नहीं कर रहे. अब जुडिशियल प्रोसेस के अंदर काम कैसे करेगा when you don't have person doing anything there, है ना, खाली जगह पड़ी है तो काम ही कैसे होगा? You have no respect for the judgments of this court. You are testing our patience. This is what Chief Justice addressed to Solicitor General Tushar Mehta. Everybody is happy with the quick way in which government cleared the Supreme Court appointments. We do not want any confrontation with the government. But if you can so quickly make appointments to the Supreme Court, you can very well do that with the small tribunals. The tribunals have virtually collapsed. Why are you being so particular about tribunals?
आप यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, डांट लगाई है भैया, है ना। देखना पड़ेगा कि क्या होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो रही है, यहाँ पे हम सिटीजन्स नाराज है, ठीक है। सरकार को कहीं ना कहीं कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आ रही है फ्रॉम फाइटर्स टू रूलर्स। जिस तरीके से अब तालिबान को पूरी गवर्नमेंट चलानी है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। दोस्तों ये समझिए, हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली जब कोई फाइटर्स आर रूलिंग, ठीक है, वो अच्छी तरीके से सरकार चला नहीं पाते। आप रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, लेनिन के बारे में बात कर लीजिए, या एक से चाइना के आपके जो लड़ाई लड़ने वाले माओ जेडोंग के बारे में बात कर लीजिए, या वर्ल्ड वॉर टू के अंदर विंस्टन चर्चिल ने जो लड़ाइयाँ करी उनके बारे में बात कर लीजिए। द फाइटर्स you can say are not becoming rulers, and that's what we have to wait and watch whether the Taliban will become the good ruler. Remember, they have postponed many announcements. तारीख पे तारीख दी उन्होंने कि हम नए सरकार बनाएंगे. Now Taliban spokesmen have said that they expect to have a new government in Afghanistan in this week, and mostly I believe by 8th of September they are going to release this data. There has been some speculation over the delay. ठीक है, more than 3 weeks after Taliban gunmen walked into Kabul and President Ashraf Ghani fled. कब ये लोग निकले? 15th August 2021. Well, some have said that Taliban were waiting to take control of the last hold province of Panjshir, which they took it. ठीक है, or some of them are thinking that they are going to make a symbol, they are going to make announcement on 9/11. I believe that 9/11 is not very important for them. They don't want to make that, you can say, name. Okay, it will be bad for them. इसलिए 9/11 तो नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. ऑथर का ज़रूर मानना हो सकता है कि ऐसा उन्होंने किया है, पर मेरा मानना है कि नहीं, दे विल बी पॉसिबली गिविंग डेटा बाय दिस डेट. इन पर्टिकुलर द डिफरेंसेस बिटवीन तालिबान लीडरशिप इन Helmand, Kandahar and some political offices like Doha. दोहा में ये लोग जनरली बैठ के पूरा कंट्रोल करके बैठे हैं. दोहा में दे आर सीन एज वेरी मॉडरेट. ओके, ठीक है. एंड एज वेल एज बिटवीन ओरिजिनल अफगान तालिबान लीडरशिप एंड पाकिस्तान बेस्ड हक्कानी नेटवर्क, ठीक है, इनके बीच में किस तरीके के डिफरेंसेस की सुलह होती है और कैसे तालिबान हक्कानी नेटवर्क के कुछ लोगों को बड़ी पोजीशन देने की कोशिश करेगा. ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ से क्रिएट होगा. मेरा मानना है कि हक्कानी नेटवर्क विल ट्राई टू कैप्चर बिग पोजीशन हियर. ठीक है, और यही एक बड़ा मुद्दा इसमें से निकलेगा. दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हक्कानी नेटवर्क, ठीक है, इसमें से कुछ न कुछ बड़ी चीज़ तो हासिल करने की ज़रूर कोशिश करेगा. द जॉकिंग इज रिपोर्टेडली ओवर कैबिनेट पोर्टफोलियो. किसको कैबिनेट पोर्टफोलियो मिलेगा? तालिबान को मिलेगा, हक्कानी नेटवर्क को मिलेगा. मेरा मानना है इन्होंने हक्कानी नेटवर्क को एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन देने की कोशिश करेंगे, विच इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री लाइक फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, उनको देने की कोशिश करेंगे. 34 प्रोविंसेस है भैया. इन 34 प्रोविंसेस में इन लोगों को कौन सी पोस्ट कब कैसे मिलेगी, बस वो देखने की बात है. Reports of differences have escalated. An appearance in Kabul of Pakistan ISI chief Lieutenant General Faiz Hamid is believed to have been an attempt to smooth over the cracks in the government formation. ठीक है, और लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर चुके हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होना चालू हो चुका है, ठीक है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है. ऐसा माना गया है कि यहाँ तालिबान में जो मुल्ला, दैट इज मोहम्मद अखुंडज़ादा, ठीक है, हायबुल्ला अखुंडज़ादा, ठीक है ना, वो पूरा कंट्रोल करेंगे ऐसा तो लग रहा है, पर कहीं ना कहीं देखने की कोशिश है कि ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे. एट द बेस ऑफ द डिफरेंसेस इज द टसल between Taliban's push to consolidate their takeover of Afghanistan and implement Islamist agenda and the desire to receive recognition from international community. हक्कानी नेटवर्क को इंटरनेशनल से सपोर्ट मिल नहीं रहा है. यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर चुका है. ये सुनो, सिराजुद्दीन हक्कानी,
ठीक है, जो भाई साहब है, या मुल्ला अखुंड जो अगेन से बड़ी लीड में माने जाते हैं, ये लोग यूनाइटेड नेशन ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करके रखा है। तो अब उनके सामने लड़ाई है कि हम तालिबान के द्वारा अगेंस्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट को आगे बढ़ाए, हमारा इस्लामिस्ट एजेंडा आगे बढ़ाए, या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेकर आए। द आउटकम होल्ड्स द की नॉट ओनली टू द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान बट ऑल्सो टू अवर, you can say, that is government of India's engagement with new regime. Any government that gives Haqqani group key position will make it difficult for India to have a role in either diplomacy or a development project. हक्कानी नेटवर्क, मेरा मानना है कि ऑथर भले ऐसा बोले, पर तालिबान हक्कानी नेटवर्क के लोगों को बड़ी पोस्ट तो जरूर देंगे, ठीक है। और इसकी वजह से पाकिस्तान का खुलेआम रोल दिखेगा, चाइना का रोल दिखेगा, और ये इंडिया के लिए एक बड़ी परेशानी होगी। मोदी गवर्नमेंट has also announced that we are now engaging with Taliban. आपको पता होगा हम दोहा में उनके साथ बात करना चालू कर चुके थे। Yes or no? Any engagement with Taliban beyond this is contingent on composition of new power. जो भी अब बातें होगी, ठीक है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड होगी कि नया पावर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नई गवर्नमेंट कैसे बनेगी, नई गवर्नमेंट क्या इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगी क्या, ठीक है, उन लोगों के रिप्रेजेंटेशन सही होंगे क्या, लोगों के अधिकारों का क्या, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज को वो अलाउ करेंगे क्या। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज तभी काम कर पाएगी जब वो ब्रॉडर वे में सब चीजें बात करें। टू दिस एंड इंडिया मस्ट यूज इट्स वॉइस ऑन इंटरनेशनल स्टेज फोर्सफुली। दिस इंक्लूड्स blocking any move at United Nations General Assembly or United Nations Security Council to recognize new regime. नए रेजीम को यूनाइटेड नेशन में रिकग्निशन करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान तो बड़ा पुश करेगा, चाइना बड़ा पुश करेगा, इंडिया को उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इंडिया को, है ना, हम जो एक यूनाइटेड नेशन में तालिबान लीडर का 1988 का एक सैंक्शन कमेटी है जिसको इंडिया चेयर कर रहा है, ठीक है, और वहां पे हम उसको कितने लिबरल होंगे उसके ऊपर बातें आएगी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ग्रेट। नाउ वी गो टू अनदर इंपॉर्टेंट, यू कैन से, एडिटोरियल फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 7 सितंबर विच इज जर्नलिज्म। दोस्तों, जर्नलिज्म में किस तरीके के एजुकेशन देने चाहिए, क्या करंट सिचुएशन है, क्या आगे करना पड़ेगा, उसके बारे में बात हो रही है। दोस्तों, the discipline of journalism education was introduced by British activist Annie Besant in 1920s when she launched a course on journalism in National University of Adyar in Madras. There are now 900 plus Indian colleges and institutes offering mass communication and journalism program. Now we need certified courses in journalism. भैया, सोशल मीडिया के द्वारा न्यूज़ जर्नलिज्म तो नहीं हो सकता। न्यूज़ जर्नलिज्म सीखना है तो आपको जाना पड़ेगा सही तरीके से, सही सोच लेने के लिए। आप सिर्फ सोशल मीडिया देखकर समझ नहीं सकते कि अरे वाह मुझे जर्नलिज्म आता है। हमें सर्टिफाइड कोर्सेज चाहिए। बड़े बड़े नंबर आ रहा है, ठीक है, कॉमर्शियल मीडिया में आते थे, अब डिजिटल जर्नलिज्म की वजह से ये दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई है। अब डिजिटल जर्नलिज्म आने की वजह से हमें क्वालिटी इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास देना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तभी हो पाएगा कि सही जानकारी भी आए। क्वालिटी इंफॉर्मेशन के बगैर ये फ्री फ्लो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या ही मतलब है जब क्वालिटी ही नहीं आ रही है तो काम कैसे होगा। टू फॉस्टर डेमोक्रेसी, citizens, you can say, should exercise and enjoy this, you can say, right to access information, right to access quality information. So जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं वो एक सही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और यहाँ से एक अच्छी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को फॉस्टर करते हैं, डायलॉग और डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। रिसेंटली वी हैव सीन जर्नलिज्म इज नॉट डूइंग इट्स वर्क, ठीक है भैया। कम्युनिकेशन चेंज बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी के बारे में सवाल पैदा करे जाते हैं, जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल, ठीक है। आपको पॉपुलरली पता होगा
गोदी जर्नलिज्म के द्वारा, ठीक है ना, जब पेड मीडिया बन जाती है, ठीक है, तब यहाँ पे आप जर्नलिज्म के ऊपर बड़े बड़े डाउट पैदा कर सकते हैं। ये सुनो, यूनेस्को ने रिसेंटली कुछ बड़े बड़े इनिशिएटिव करे। यूनेस्को हैज सेट अप ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म एजुकेशन इन 2014। क्या काम था उनका? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी नए नए लेसन्स उन्होंने सीखे हैं ओवर अफ्रीकन स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, उससे लेवरेज ले, उसको अप्लाई करें इन द वाइडर कंटेक्स्ट टू सपोर्ट journalism education globally. They also ensured that there are new literacies are getting developed. अब पुराने ज़माने की लिटरेसी तो रही नहीं। ये सुनो, जिस तरीके का जर्नलिज्म अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके का लिटरेसी लोगों की बढ़ रही है, ठीक है, उसको तो बढ़ना पड़ेगा। ये सुनो, विच मीन्स वी हैव टू टॉक अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, साइंस जर्नलिज्म, डेटा जर्नलिज्म, ठीक है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, यूनेस्को ने एक बुक पब्लिश करी थी, हैंडबुक बोलते थे इसको, दैट इज नेम्ड एज जर्नलिज्म, फेक न्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन, विच इज अ न्यू लिटरेसी इन टूडेज टाइम। आज के ज़माने में क्या लोगों को पता है फेक न्यूज़ क्या है, डीप फेक क्या है, डिसइंफॉर्मेशन कैसे आती है और उसके द्वारा लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? ये सुनो, so many of the schools that UNESCO supported over the years have become stronger. They have acquired greater capacity to be strategic part of global network. ये सुनो, ये उन्होंने करने की कोशिश करी है। तो ये बड़ा सवाल है, इस सवाल को हमें देखना पड़ेगा कि कैसे उसको हैंडल किया जाए। Now we come to a new topic which is known as spirit of federalism lies in consultation. आपको याद होगा आगे मैंने एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट लगा रही थी कि आप ट्राइब्यूनल की वैकेंसीज क्यों फिल नहीं कर रहे, उस समय पे मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म के बारे में या डिबेट और डिस्कशन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रॉपर फेडरलिज्म के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट और सेंटर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप। सेंटर ये नहीं बोल सकता है कि भैया ये पूरा देश हमारा है, हम जो बोले, हम यूनिलैटरल वे में जो आपके लिए लॉ बनाए वो आपको अप्लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सो हमें देखना पड़ेगा। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट सेंटर्स यूनिलैटरलिज्म in enacting certain laws on various subjects like concurrent list of 7th schedule। आपको पता होगा 7th शेड्यूल में यू कैन से अलग अलग लिस्ट आते हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों अपना पावर लगा सकते हैं, तो ज़्यादातर सेंटर वहाँ पे लॉ बना रहा है और स्टेट की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन स्टेटेड दैट इट इज़ नॉट इन द एसेंस ऑफ फेडरलिज्म फॉर द यूनियन गवर्नमेंट to legislate unilaterally and avoiding discussion with the states on the subjects of concurrent list। क्या इंडिया डेमोक्रेसी नहीं रहा? केरला के चीफ मिनिस्टर को लग रहा है कि ये तो गलत बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन। He raised the issue by calling on other chief minister against union government usurping power under the state and concurrent list। usurping पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, किस तरीके से लिया? गलत तरीके से लिया। ठीक है, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली यूनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, सिमिलरली तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस के खिलाफ अपना रेजोल्यूशन पास करा। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पूछा नहीं गया। देखिए क्या क्या लेकिन से ऐसे बिल्स थे जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट से कुछ पूछा नहीं। फार्म बिल्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर कम्स अंडर स्टेट रूल। ठीक है, स्टेट के पर्व्यू में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। इन्होंने कोई तरीके से स्टेट से पूछा ही नहीं। ठीक है, एंड इट वाज आल्सो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा केस के अंदर इट सेज दैट इफ एन इनेक्टमेंट फॉल्स विद इन वन ऑफ द मैटर्स असाइन टू द स्टेट लिस्ट
and the reconciliation is not possible with any entry in the concurrent or union list after employing the doctrine of pith and substance, the legislative domain of state legislature must prevail. ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने बताया. ठीक है दोस्तों, ये डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है. डॉक्ट्राइन ऑफ यू कैन से पीथ एंड सब्सटेंस, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों. अगर आपको समझ में आए, ठीक है, पीथ एंड सब्सटेंस वाला, ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, देखिए दोस्तों क्या मतलब है उसका. द डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, ठीक है, इट एम्फसाइजेस ऑन द फैक्ट दैट it is the real subject matter which is to be challenged and not its incidental effect on the other field. ठीक है, pith का मतलब होता है essence of something, that is a true nature, while substance which says the most significant and essential part of something, which means अगर आपने फार्म लॉस को ये बोल के बोला कि नहीं नहीं फलानी एंट्री के मुताबिक सेंटर भी इसके ऊपर कुछ बात कर सकता है, अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप ये डॉक्ट्राइन लगाइए ना कि मेन मुद्दा क्या है, किसके हाथ में पावर है. ठीक है दोस्तों, पीथ एंड सब्सटेंस मीन्स ट्रू नेचर ऑफ लॉ. द रियल सब्जेक्ट मैटर इज टू बी चैलेंज एंड नॉट द इंसिडेंटल मैटर. आप फार्म लॉ को आप सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में लेकर ये बताने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज अ ट्रू पॉइंट. ठीक है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जब आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हो तो आपको ये पीथ और सब्सटेंस का डॉक्ट्राइन तो अप्लाई करना पड़ेगा. एक और एग्जांपल लेते हैं, रिडंडेंसी ऑफ वेरियस लोकल लॉज. जब सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट 2021 पास किया, ठीक है, तब गोवा ने उसको ऑब्जेक्ट किया था, स्टेटिंग दैट इट वुड लीड टू द रिडंडेंसी ऑफ लोकल लॉज इंक्लूडिंग गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, गोवा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, गोवा पंचायत राज एक्ट, गोवा लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन एक्ट, गोवा लैंड रेवेन्यू एक्ट. इसको पूरा लेकिन से रिडंडेंट बना देगा. देखिए दोस्तों, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, जब मेजर पोर्ट के बारे में डिसीजन आया, ठीक है, तो एंट्री नंबर 31 कॉन्करेंट लिस्ट में नॉन मेजर पोर्ट आते थे. अकॉर्डिंग टू इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 विच प्रेजेंटली गवर्न्स द फील्ड रिलेटेड टू नॉन मेजर पोर्ट्स, power to regulate and control minor ports remained with the state government. By you can say making changes in this, ठीक है, minor ports are also controlled under the state. Here there is no consultation with the state was provided. ठीक है, transfer of power related to planning, developing and regulating of non-major port, ठीक है, will be coming under Maritime State Development Board, जो पूरा का पूरा यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से गोवा ने अपोज किया. उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया. वन मोर बिल was passed called Electricity Amendment Bill. Various states like West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, they have also come forward against this bill. Remember, electricity is coming under entry number 38 of concurrent list. The power to regulate this sector is vested with the State Electricity Regulatory Commission. ठीक है दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है. ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अमेंडमेंट कर रहे हैं, यहीं पे अपोजिशन क्रिएट हो रहा है दोस्तों, इसी का लड़ाई है. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ कंसर्न? कॉज ऑफ कंसर्न इज द फेडरल सिस्टम विच वाज डेवलप्ड, जहां पे हम बनाते हैं एक सेंटर का लिस्ट, एक स्टेट का लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट. उसकी स्पिरिट तो मेंटेन होनी चाहिए. यस और नो? द बैलेंस हैज टू बी मेंटेन, बट यहां पे बैलेंस मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है. Yes or no? Because certain subjects which are put into the concurrent list, वहां पे यूनियन अपनी मनमर्जी से एक ऐसा लॉ लगा देता है. What is the logic behind concurrent list? Logic behind the concurrent list is there is a common interest of union and state, and thereby इन दोनों को कंसल्ट तो करना चाहिए ना.
ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में लगाने का मतलब ही क्या था? ठीक है भैया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तब केटीएम अहमद इब्राहिम साहिब बहादुर ने एक अपना फियर दिखाया था कि सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट लिस्ट बीइंग ट्रांसफर्ड टू द यूनियन लिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू यूनियन गवर्नमेंट्स हाई हैंडेडनेस, ये होने वाला है तो इसको ध्यान रखो, इसमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाओ। और उस समय पे नहीं लगाया था, जिसकी वजह से आज हमें इसकी दिक्कतें भुगतनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक और मुद्दे के बारे में, फूड इमरजेंसी। किसके बारे में? फूड इमरजेंसी। ठीक है, इन श्रीलंका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है, हमें पता होना चाहिए कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब ने इसको डिक्लेयर किया दैट वी हैव एन इकोनॉमिक इमरजेंसी, दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी। भारत में आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360 के मुताबिक ये 3 इमरजेंसी आती है। ठीक है, दिस इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी, दिस इज नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट पे लगता है, yes or no, and this is known as फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई, श्रीलंका में अभी लगानी पड़ी। ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस ऑन सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड की वजह से ऐसा हुआ। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका में, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा? दोस्तों, श्रीलंका पूरा का पूरा टूरिज्म पे डिपेंडेंट देश है। ठीक है, देश की जीडीपी का 10% से ज़्यादा पैसा इनका आता है टूरिज्म से। कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे काम ही नहीं हो पाया। उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, ठीक है, जो करीबन 7.5 बिलियन डॉलर था, जो रिड्यूस होकर 2.8 बिलियन डॉलर पे पहुंचे, इतना कम हो गया। देन सेकेंड थिंग, देयर करेंसी वॉज डेप्रिशिएटिंग। ठीक है, करेंसी काफी ज्यादा डेप्रिशिएट होने लगा, ऑब्वियस है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका कम होने लगा तो आप डेप्रिशिएट जरूर करोगे। वहां पे इन्फ्लेशन की भरमार होने लगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आप इंपोर्ट करते हो, फूड आप इंपोर्ट करते हो, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट, व्हीट, मेडिकल सप्लाई, सब कुछ आप वहां पे इंपोर्ट करते हो। ये सुनो, फॉरेन करेंसी आ नहीं रही है, कोई एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, वर्कर रेमिटेंसेस आ नहीं रहे, ठीक है, और फूड शॉर्टेज तो है ही। ये सुनो, ठीक है, तो भैया वहां पे काफी हालत हो रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भारत में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो आर्टिकल नंबर 360 के मुताबिक लगाई जाएगी, अभी तक लगाई नहीं गई है। अगर भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, होती है यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाएगा इन द मैटर ऑफ फाइनेंशियल पार्ट। लोगों की सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग क्लासेस के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी अलाउंसेस कम हो जाएंगे। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से रूल लगाएंगे। प्रेसिडेंट विल ऑल्सो गिव डायरेक्शंस फॉर रिड्यूसिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। भारत में ऐसा होगा। ठीक है, तो श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका के पास कोई अपना यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम लाइक राशन कार्ड की सिस्टम है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोग मारा काटी करेंगे। ये सुनो, और उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि आपने सही तरीके से इसको मैनेज किया नहीं है। ओके, ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ से निकल के आ रहा है। चलिए, ग्रेट है दोस्तों। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। सीरियस कैंडिडेट को ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ये कोर्स से मेरा मानना है कि आप गारंटीड वे में टॉप रैंक में पहुंचेंगे। इस कोर्स को जरूर 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 ज्वाइन करिए, और इस वीडियो के लिंक में हमने इस कोर्सेज की लिंक दी है, आप उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।